Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next chapter of the English book, that is chapter number 18, Division of Labor. As you can see, your chapter title means the division of labor, मतलब कि अलग अलग लेबर्स के अकॉर्डिंग उनको कैसे डिवाइड करा जाता है, उससे रिलेवेंट हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, so I would like that first of all you all should open your page number 106 where the chapter beginning has been given up to you. Okay, so let's begin up with the reading of your chapter, that is division of labor. Work is one of the things that is necessary to keep the world going. Without it we would die very soon. Work एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो डेली प्रोसीजर्स को चलाती रहती है, हम सब उसके बिना कुछ भी नहीं है. Let us think about the different kings. अगर हम अलग अलग किंग्स के बारे में सोचें, of the work they are, जो वर्क यहाँ पे वो कर रहे हैं, and what they are done for, उन्होंने उसके लिए क्या करा है. To begin with many men on the land, अगर हम begin करें किससे, बहुत सारे बैंस, बहुत सारे ऐसे जने जो लैंड पे हैं, they are cultivators और gardeners और shepherds. वो कौन है? कल्टिवेटर्स हैं, गार्डनर्स हैं, या शेफर्ड भी आप कह सकते हैं. They dig, plow और sow seed. वो dig करते हैं, plow भी करते हैं और seed को sow भी करते हैं. और else they look after the cow and buffaloes, goats and sheep. They all are busy growing things. वो सब किस में बिजी हैं? चीज़ें उगाने में बिजी हैं. We can call them farmers or growers. Without them there would be no wheat to make into flour. अगर उनके बिना हमारे पास wheat नहीं है, गेहूँ नहीं है जिसे हम फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं. Without them there would be no hay to feed our cattle. उनके बिना हमारे पास कोई भी है नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम अपने कैटल्स को फीड कर सकते हैं. There would be no dal or rice, no bajra or jawar, no vegetables, no tea, no milk, ghee, no cotton or cotton. Farmer grow crops. Farmers जो हैं crops को grow करते हैं. But we can say that farmer grow animals. पर हम कह सकते हैं कि जो farmers हैं वो animals को भी grow करते हैं. Is it true that farmers do not grow animals the way they grow crops? हाँ, ये ट्रू है कि जो फार्मर्स हैं वो वैसे एनिमल को ग्रो नहीं करते जैसे वो क्रॉप को ग्रो करते हैं. बट दे हेल्प एनिमल टू ग्रो इन अ सेम वे एज दे हेल्प द क्रॉप टू ग्रो. एनिमल ग्रो जस्ट एज द प्लांट डू. They need the same ground to live on and have to look after the same way. Animals भी ऐसे ही grow होते हैं जैसे कि plant grow होते हैं और वो उसी same land पे रहते हैं जहाँ पे plant भी grow होती हैं. So we can say, हम कह सकते हैं that all the people who grow crops and help animals to grow are growers. जो जितने भी जने जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या एनिमल्स को पालते हैं उनको हम कह सकते हैं वो कौन है? ग्रोवर्स. Cultivators, gardeners, shepherds, dairymen, poultry farmers are all growers. अब आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. There are many other peoples who are also busy with the ground. यहाँ पे ऐसे काफ़ी जने हैं जो भी बिजी हैं अपने किससे? ग्राउंड से. But they do not grow things on the ground. पर वो ग्राउंड पे चीज़ें ग्रो नहीं करते, उगाते नहीं हैं. They dig things out of the ground. वो किससे डिग करते हैं? थिंग्स ग्राउंड से डिग करते हैं. They dig out coal, iron, coal, silver, tin, copper, lead, mica and many other minerals. We call them miners. हम उन्हें क्या कहते हैं? माइनर्स कहते हैं. They also dig out precious stone. We call diamonds. They are other things who dig out of stones for our building and roads. अब ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हम dig out भी करते हैं जो किसके लिए होती हैं? हमारी अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? They dig out stones for laying
दे डिग आउट स्टोन फॉर लेइंग द बेड फॉर रेलवे लाइंस। वो क्या करते हैं, वो जो स्टोन होते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, हमारी बिल्डिंग से निकालते हैं और रोड से निकालते हैं। वो डिग आउट करते हैं स्टोन्स कहाँ से, किसके लिए, जो रेलवे लाइंस पे जो रेलवे लाइंस पे पड़े होते हैं वहाँ से निकालते हैं। वी कॉल देम क्वेरीमैन्स। हम उन्हें क्या कहते हैं, क्वेरीमैन्स कहते हैं। Some diggers dig up clay to make into brick. Some dig up another kind of clay called china clay. It is the kind of white clay that is used to make the cup, plates and other kind of earthware. Most of our coal iron mines are in Jharkhand. Mostly जो हमारी कोल्स आयरन ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे हैं, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। ओके ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, बोथ कोल्स एंड आयरन आर नीडेड फॉर 100 ऑफ द डिफरेंट पर्पस। जो कोल्स एंड आयरन हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होती हैं। विदाउट देम वी कुड नॉट गेट ऑन ऑल। हम उनके बिना कुछ नहीं हैं, हम उनके बिना कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ आर मशीन्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। मोस्टली जो हमारी मशीन्स हैं, मोस्टली जो मशीन्स हैं वो किससे बनी हुई है, हमारी आयरन और स्टील से बनी हुई हैं। एंड coal is needed not only to make iron into machines but also to produce electricity. coal सिर्फ आयरन और मशीन्स के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। that helps to drive those machines. Now we came to the third kind of workers. अगर हम third kind of workers में आए वो कौन है, those who make things, जो चीज़ें बनाते हैं। we call them makers. हम उन्हें makers कहते हैं, हम उन्हें मेकर्स कहते हैं। वी हैव पुट देम थर्ड बिकॉज दे कैन नॉट डू देयर वर्क अंटिल द फर्स्ट टू growers and diggers have done their. Things must either be grown or dug up before anything that can be made out of them. You cannot make anything out of nothing. हम इन चीज़ों के अगर हमारे पास यही चीज़ें नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं बना सकते। Everything that is made has to be made either of the things that has been grow or thing that has been dug up. They may also be made from leather. वो लेदर से भी बनाई जा सकती हैं, और the wool we got from animals, और वो wool से भी जो हम animal से मिलती हैं। Thus, third kind of workers we call makers need the first two kind to supply them the material of making them. अब जो third kind of workers होते हैं उन लोगों को first और second kind of workers की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने material को supply करे। Now we came to the fourth kind of workers. They are just as useful as necessary as others three. That things that you want to eat or wear, things that you want to eat or wear or use wouldn't come to you by themselves. जो हम पहनते हैं या हम खाते हैं वो इनके फोर्थ वर्कर के अलावा नहीं आ सकती, उनके हेल्प से नहीं आ सकती। It would be very awkward if you had to fetch them all yourself. Things have to be brought from the place where they are made or grown or take up the place where they are wanted. अब जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ से लाई जहाँ से वो डिग अप करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ये सब वहाँ से लाते हैं। So a great many men are occupied in moving things. बहुत से ऐसे जने हैं जो इस चीज़ों में moving things में ऑक्यूपाई करते हैं। We have among these sailors, हमें इनके अलावा जो sailors हैं वो है यहाँ पे रेलवे मेन्स हैं, कार ड्राइवर्स हैं, मोटर ड्राइवर्स हैं and so on. We call them movers. और इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम movers कहते हैं। Now turn up your next page. Now, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, there are still one more set of workers. यहाँ पे इसके अलावा भी एक set of worker है। Try and think of the people who do not grow or dig or make the things move.
They do not do anything of these things. वो इनमें से किसी कुछ भी नहीं करते. And yet they were very useful workers. इसके अलावा भी ये बहुत useful workers हैं. जैसे कि what about your teacher, the doctor, the dentist, policeman, the soldier, lawyers and the priest? What is their work? अब हम इनके वर्क के बारे में देखेंगे. These people and many other do exactly to do not exactly make the things. ये जो जने होते हैं ये exactly जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं बनाते, but you can never do without them. पर हम इनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. They do things for you, you do not do yourself. वो चीज़ें करते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते. जैसे कि your teachers teaches you, the doctor cures you, the dentist look for your teeth, the soldiers fight for you. They all do something for you that you done but you cannot do by yourself. So we have fifth set of workers. अब हमारे पास fifth set of workers हैं in addition to the first four. It is not easy to choose a simple name of this set of workers. ये easy नहीं है कि हम इन set of workers का एक name चुनें. You can perhaps call them helpers. आप इन्हें helpers भी कह सकते हो. Clearly they are different from the other four kinds. Clearly अगर हम देखें ये other four kinds से बहुत different हैं. They do not supply you anything that you need. वो हमें कुछ भी supply नहीं करते जो हमें need में चाहिए. They simply gave you the help that you need. Only could say that give you their service. Only हम ये कह सकते हैं कि वो हमें जो service है वो provide करते हैं. But a simple service is much the same thing as help. पर एक simple service कैसी है? एक same thing है जैसे कि help. So the best name of this set worker is helper. तो इस जो best name हम इस set of worker का निकालें वो क्या है? helper. You see that every worker goes one in on the other of these five set. Sometimes it may not easy to see just where the place of workers. For instance, for example, what about shopkeeper? Which set shall you put them in? अब हम क्या कहें? शॉपकीपर क्या है? अगर हम उसे यहाँ पे पुट अप रख दें कर दें. I think the best place to put them is among the movers. अगर हम देखें तो उनकी एक बेस्ट प्लेस क्या है? जब उन्हें हम मूवर्स में एक मूवर्स में रख दें. It is true that they do not move the things they sell very far. ये सही बात है, ये सच है कि वो इतनी जो चीज़ें हैं वो सेल नहीं करते जितनी उन्हें सेल करनी चाहिए. They just handed them to you over the counter. वो तुम्हें काउंटर से हैंडेड ओवर करते हैं. Things are brought to their shop by the ship and the trains and cart. But the shopkeeper are more like movers than the other kind of workers. They put the things you want in your hands. वो चीज़ें वही रखते हैं जो आपको चाहिए. They finish off the long journey many of the things have made. Now look around the room in you are in. अब अगर आप अपने रूम में देखो, things all are different. हर चीज़ different है. Workers that have been needed to make is what it is first. There are the walls. वहाँ पे walls हैं. They are made of brick. A digger has dug up the clay. A digger had to dig up the clay. The maker had to make the clay into the brick. A mover had to move the brick from the place where they are made from a place where the builder wanted them. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये बनाई जाती हैं, वहाँ पे लेके जाई जाती हैं जहाँ पे बिल्डर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. Think of all these workers who made the furniture, the window, the picture, the utensils and the many other things in your house. Think of the engine driver, carter, sailors and the other who help to bring these things to your home. Then you will see how many different kind of workers there are. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने kind of workers हैं जो हमारे यहाँ पे आसपास काम करते हैं. They all are busy in helping to provide the things you want. ये सब busy है कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें provide करने में. Now at last
नाउ वाई आर देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे इतने सारे काइंड ऑफ वर्कर्स क्यों हैं? वाई डज नॉट एवरी मैन हिमसेल्फ मेड द थिंग्स ही वॉन्ट? श्योरली इट विल बी अ सिंपल एंड वुड सेव इट फॉर अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। 100 years ago, बहुत साल पहले, that was just what everybody did. बहुत साल पहले ऐसा होता था कि जो चीज़ को चाहिए होता था वो उसे मिल जाता था. Each man built his own house and grew their own food. हर मैन अपना खुद का हाउस और अपनी खुद की चीज़ें बनाता था. He himself made all the clothes he need. वो अपने खुद के क्लोथ्स बनाता था. But very soon man found out that it is much better to dive to the work among them. Thus one of them built the house. इसी तरीके से एक जो है हाउस को बिल्ट अप करता है. Another grew the food, दूसरा फूड को ग्रू करता है. Another made the cloth and so on. You can easily see this very better plan. तुम इसको बहुत अच्छे better plan से भी देख सकते हो. By always doing the same kind of work you can do for many quickly and easy. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और इसी तरीके से आप जैसे जैसे काम करते रहते हो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मैन को उसके काम में परफेक्ट बनाती है. अब आपके लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है? नाउ अ डे ऑल द वर्कर्स आर डिवाइडेड अप एज मच एज पॉसिबल. अब आज के टाइम में हर जो वर्कर्स हैं वो अपने अपने पॉसिबल टाइम में डिवाइडेड हैं. नॉट वेरी लॉन्ग अगो इवन सच अ टाइनी थिंग एज अ पेन वॉज नॉट मेड बाय वन मैन. इवन एक जो टाइनी पिन है वो एक मैन के अलावा भी नहीं बनाई जा सकती. इट वॉज मेड बाय अ डजन ऑफ मैन. वो बहुत सारे मैन बनाई जा सकती है. एवन मोर. Each man did his particular bit of work are straight but a wire. जैसे कि क्या है? One straight out the wire, another cut into the length. दूसरे जो हैं वो लेंथ में काटते हैं उसे. Another shape the point. दूसरे जो हैं शेप करते हैं उसे पॉइंट को. Another put the head on it and so forth. And this plan is called the division of work. और यही चीज़ें जो होती हैं ये किसको कहते हैं? ये सब कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क. सो क्लास, यहाँ पे आपका जो लेक्चर में जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो फिनिश आउट होता है. यहाँ पे आपके चैप्टर की जो रीडिंग है वो फिनिश होती है. ओके क्लास, अब यहाँ पे आपकी क्या फिनिश अप होती है? रीडिंग सेक्शन फिनिश होती है. अब हम आते हैं आपके वर्ड बास्केट में. दैट इज योर नेक्स्ट पेज ऑन 110. आई होप आप सबने खोल लिया होगा. तो हम आपका वर्ड बास्केट देखते हैं. आपका फर्स्ट वर्ड है कल्टीवेटर्स. क्या है आपका फर्स्ट वर्ड? कल्टीवेटर्स. कल्टीवेटर्स का आपको मीनिंग दे रखा है द पीपल हु प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. वो जने ऐसे व्यक्ति जो आपकी क्रॉप्स को उगाने में मदद करते हैं. ऐसे व्यक्ति जो आपकी क्रॉप्स को आपके ग्राउंड पे जो आप क्रॉप ग्रो करते हो उसको उगाते हैं. ओके, सेकेंड वर्ड आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है बाजरा या जवार. बाजरा या जवार आप देखो बेसिकली तो क्या होते हैं हमारे खाने में, जैसी हमारी व्हीट होती है उसी के इक्विवेलेंट ये बाजरा और जवार होता है. इसका हम पहले मीनिंग देखते हैं. क्या दे रखा है? ग्रेन क्रॉप. ओके, ग्रेन क्रॉप वही चीज़. ग्रेन क्रॉप मतलब कि जैसी हमारी व्हीट होती है वैसे ही हमारा बाजरा और जवार होता है. ये बेसिकली हमारे गेहूँ होते हैं. ये हमारी ग्रेन क्रॉप होती है. नेक्स्ट आपको दे रखा है लेइंग. क्या दे रखा है? लेइंग. लेइंग का मीनिंग है पुटिंग समथिंग इन अ सुटेबल पोजीशन. जब हम किसी चीज़ को या किसी थिंग को एक सुटेबल पोजीशन में रख देते हैं, उसकी जहाँ पे वो फिट होती है या एक सुटेबल पोजीशन में हम उसे रख देते हैं तो उसका मीनिंग होता है लेइंग. नेक्स्ट आपको दे रखा है
नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेरीमैन। क्वेरीमैन का मीनिंग है अ मैन हु डिग स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि एक ऐसा जना, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टोन निकालता है ग्राउंड से। आपकी जो एक ग्राउंड है, ग्राउंड से स्टोन को बाहर निकालता है, पत्थर को बाहर निकालता है। नेक्स्ट आपको फिफ्थ क्या दे रखा है? नेक्स्ट आपको दे रखा है earthenware। ओके तो आपको earthenware का मीनिंग दे रखा है पॉट्स एंड डिशेस, मतलब कि जो आपके कांच के बर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं earthenware। नेक्स्ट आपको दे रखा है जस्ट। जस्ट मतलब कि एग्जैक्टली जो आपको दे रखा है, पर्टिकुलरली आपको वही चीज करनी है, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली या फिर ऑकवर्ड, कॉजली, डिफिकल्टी या नॉट प्लीजेंटली। ओके नेक्स्ट आपको दे रखा है सेवन वर्ड। क्या है वो? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मीनिंग जब आपने एक जगह या घेरा ले लेते हैं, उस जगह को आप ले लेते हैं, तो ऑक्यूपाइड मतलब हो गया बिजी। ओके नेक्स्ट आपको एट्थ वर्ड दे रखा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब हो गया वैसा ही, सेम। ओके मतलब कि यहाँ पे आपको दे रखा है रियली। ओके नेक्स्ट वर्ड आपको नाइन्थ वर्ड क्या है? कार्टर। क्या दे रखा है? कार्टर। कार्टर का मीनिंग है वन दैट ड्राइव्स अ कार्ट और अ ट्रक, एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा जना जो कार्ट या ट्रक को ड्राइव करता है। और आपका टेंथ है बिट। बिट। बिट का मीनिंग है स्मॉल पीस, छोटा टुकड़ा या छोटी चीज। ओके तो क्लास आज हमने आपके लेक्चर में आपके चैप्टर की रीडिंग करी और यहाँ पे हमने आपका जो वर्ड बास्केट है उसको एक बार डिस्कस करा। सो अब आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और अपनी वर्ड बास्केट उन्हें रीड करेंगे, लर्न करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।